Hello, curious people. So, in this video, we will discuss the week 2's mathematics content. Okay, so this video is little bit late, but seriously, the course material is a lot and it is becoming somewhat heavy for me because I have to do other things also, and it is becoming a little bit too much, but it's okay. I will do it and I must do it. I have no option. So we'll start with the second week's content of mathematics. So in the second week, it was all about slope, uh, straight lines, and everything related to a straight a linear line and its algebraic form, linear equation, how it is, and how to define a line on a plane. We cannot define a line on a plane with only having a slope or a point. We need both slope also and a point to define a line on a plane. So let's dive into it and start the video. So everyone knows the coordinate plane, right? There are four quadrants: first quadrant, second quadrant, third, and fourth. Okay, so let me show you. I have the diagram drawn over here. Not getting where it went, अभी तो था. हाँ. So here is, let me adjust the screen. Okay, I hope you can see. So these are the four quadrants, and this is the first quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. Okay, so this is the x axis, y axis. Okay, so this is the very basic thing everyone knows, right? It's taught in school also, and we need to remember these signs. Now in this video it's showing you opposite, but remember, I in the first quadrant both the coordinates are positive. In the second quadrant, the x coordinate is negative and the y coordinate is positive. Don't see this, listen to my words. X coordinate is negative, y coordinate is positive. In the third quadrant, both the x and y coordinate are negative. In the fourth, the x coordinate is positive and the y coordinate is negative. So there are four parts, and this is the origin, and any point on the x axis or any point on this is a on the x axis, and any point on this line is on y axis. It's not any of the quadrant. It doesn't belong. It belongs to x axis or y axis, and any one x or y is 0, and we call it intercept. So there were several formulas in this week 2 content. Distance of between 2 points. Okay, distance between 2 points. Then section formula, when a line is divided by a point, in which ratio it is being divided, m is to n, and how to find that particular point by using the ratio and the 2 points, that was discussed. It is very easy. Let's move to the slope. Okay, so that part was just introduction,
and it's very basic, everyone knows. I assume that everyone knows that. Let's go to slope. And this is a new thing for me. For science students it might not be. For me it's a new thing, and it was very basic, but good to know. Okay, slope. Now what is slope? Slope of a line is defined as the rate of change in y ड्यू टू चेंज इन एक्स. मतलब हम एक्स एक्सेस पे कितना चल रहे हैं, जिसकी वजह से वाई एक्सेस में क्या चेंज आ रहा है. सो दैट इज़ द स्लोप. एंड इट्स, इफ़ यू वांट टू फाइंड इट, if there are 2 points x1 and y1 and x2 y2, just divide y2 minus y1 upon x2 minus x1. It gives you the slope of that particular line. Okay, and characterization of parallel lines via slope. Two parallel lines have the same slope. Okay, if two lines are parallel, they both have सेम स्लोप. मतलब ये दोनों लाइन, इनका स्लोप सेम होगा, है ना, क्योंकि ये पैरेलल है. सॉरी. when the lines are perpendicular मतलब कि वो 90 डिग्री बना रहे हैं. जब भी इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो वो 90 डिग्री बना रहे हैं, तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट होगा -1. दिस इज द थिंग टू रिमेंबर. एंड here is one interesting thing I want to explain. This is a diagram, and these two lines are intersecting with each other, but they are not perpendicular. They are making some angle. So that some angle is this theta, and this, I don't know what to call this. This is a Greek symbol for phi. We use in MT set also. So this theta is equal to, if I draw a straight, assume this line of this book is the x-axis, and if I draw a straight line here, this angle is this alpha 2 minus alpha 1. Okay, can you imagine? Here this is the line, this is alpha 2 minus alpha 1 gives you this angle theta. That's an interesting thing. And there is one formula also for it, to find the theta, the angle here. There is one formula. Let me read out for you. Tan alpha 2 minus tan alpha 1 upon 1 plus tan alpha 1 into tan alpha 2. So it's, what is tan? Tan is nothing but slope. मतलब दो एडजेसेंट लाइन का वो रेशियो होता है ना. मतलब अब ये एक ट्रायंगल है, समझ लो. ठीक है. ठीक है, ये ऐसा ट्रायंगल है. यहाँ एक लाइन है परपेंडिकुलर, ये राइट. ओके, हाँ. तो मेरा फेस एक राइट एंगल बना रहा है इसके साथ. तो यहाँ जो एंगल बनेगा ना, तो इसका और इसका वो क्या होगा, रेशियो होगा. उसको टैन कहते हैं. व्हाट इज स्लोप? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. सो दैट इज द स्लोप. डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये x एक्सेस पे ऐसा स्लोप बनाता है. सो आई डिडंट, इट जस्ट केम आउट. आइडिया अच्छा था ना ये. ओके, सो ये होगी स्लोप की बात. सो देयर आर अ वैरायटी ऑफ equation to find equation variety of methods to find out the equation of a line. So let me point slope form. When the equation is derived by
you have a slope, you have a point, and you want to find the equation of a line, so you can do it, because हमें slope कैसे आता है पता है. तो slope m इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x2 माइनस x1 जो डिनोमिनेटर में उसको यहाँ पे भेज दो, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा m के साथ और एक इक्वेशन बन जाएगा. और जो भी पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो उस लाइन का, मतलब वो लाइन उस पॉइंट से गुजरती है. ठीक है, मैंने लिखा था यार, कहाँ गया. हाँ, मिल गया. तो स्लोप पॉइंट फॉर्म वो हो गया. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब जब हमें स्लोप पता है और एक तो एक्स इंटरसेप्ट पता है, मतलब कि जब y 0 होता है तो x की वैल्यू क्या है वो पता है, और या फिर y इंटरसेप्ट पता है जब x 0 होता है तो y की वैल्यू क्या है. अगर वो पता है तो वो स्लोप और इंटरसेप्ट जो भी है y और x उसका फॉर्म, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया. 2 पॉइंट फॉर्म मतलब जब हमें 2 पॉइंट पता है तो उन 2 पॉइंट से भी हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं. कैसे? उन 2 पॉइंट से पहले स्लोप पता कर लो, फिर वो स्लोप साइड में रख दो और एक पॉइंट ले लो, और हमें पता ही है कि स्लोप और पॉइंट से कैसे इक्वेशन फाइंड करना है. 2 पॉइंट से स्लोप लो, फिर वो एक पॉइंट उठाओ और एक इक्वेशन बना दो. जो भी पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो लाइन उस पॉइंट से गुजरती है. बस ये लाइन छापा मार लो दिमाग में. सो देयर इज़ अ जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ax by प्लस सी. उल्टा ही दिखने वाला है. लेट इट बी ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. So this is general equation of a linear line. Okay. जब भी स्लोप 0 से ज़्यादा होता है, मतलब इट्स पॉजिटिव इंटीजर है स्लोप, तो वो हमेशा लाइन ना ऐसे ऊपर जाएगी. it's going upward from left to right, ऐसे जाएगी लेफ्ट टू राइट. अगर 0 से कम है मतलब नेगेटिव इंटीजर है, तो नेगेटिव इंटीजर नहीं करूँगी मैं. इट मे बी एनी रियल नंबर, या स्लोप माइट बी एनी रियल नंबर. हो गया. ऐसे जा रहे तो जब ऐसे कब जाएगी, जब स्लोप कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, ऐसे जा रही है, मतलब कि फ्रॉम इट्स गोइंग डाउन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, या फिर राइट से लेफ़्ट के ऊपर जा रही है, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट के ऊपर जा रही है. सो when it happens, when the slope has a negative real number, okay, less than 0. अगर 0 है तो हॉरिजॉन्टल है, मतलब इट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस. और वर्टिकल लाइन उसका स्लोप हमें पता ही नहीं है, इट्स नॉट डिफाइंड बिकॉज tan 90 इज़ अनडिफाइंड. ओके, सो मैंने कहा था ना tan और स्लोप सेम ही है. सो this was about equation of the line. Okay, and there is one more formula for area of triangle. हाफ और मॉड्यूलस के अंदर x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट x3 माइनस x1 प्लस x3, सॉरी क्या बोला मैंने, x प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट x1 माइनस x2. अब इसको, ये बड़ा जम्बल्ड है ना, इसको याद कैसे लें. हमारे स्कूल में ना टीचर ने एक बार बताया था, पता नहीं कितने लोगों को पता है, बट आई एम जस्ट शेयरिंग अज्यूमिंग दैट मोस्ट ऑफ पीपल डोंट नो.
सो एक सीक्वेंस है 1 2 3, है ना। x ब्रैकेट के अंदर तो y आना है और ब्रैकेट के बाहर x आना है, ओके। प्लस तो वो जनरल है। अब 1 2 3 में कंफ्यूजन होता है कि क्या कहाँ आएगा। एक सीक्वेंस है 1 2 3, है ना, तो उसी ऑर्डर में वो आना चाहिए। अब देखो x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3, 1 2 3 हो गया। अब क्या आएगा, x2 आया, फिर 2 के बाद क्या आता है 3, तो y3 माइनस y1 आएगा, ओके। अब लास्ट में क्या है x3, 3 के बाद तो कुछ है ही नहीं, 1 2 3 है, तो फिर से x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। सो ये 1 2 3 का सीक्वेंस याद रख लो, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ओके। सो दिस इज़ अमेजिंग ट्रिक मेरे टीचर ने बताया था। इट्स वाओ, ओके। सो हमने मोस्ट ऑफ थिंग्स कवर कर ली हैं शायद। दिस वॉज वेरी क्विक, राइट। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सो लेट मी डिस्कस सम मोर थिंग्स विथ यू। इसका कैमरा मेरा चेंज भी नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, सो कैन यू सी दिस? ओके, दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। तो ये EM1, ये मैंने बोला था ना सेक्शन फॉर्मूला है, ये कैसे अराइव हुआ। सो इट्स बेस्ड ऑन द थ्योरम ऑफ क्या हुआ, सिमिलैरिटीज़ ऑफ ट्रायंगल, ओके। तो मतलब ये एक बड़ा ट्रायंगल है, इसका छोटा फॉर्म ये है, तो क्या होगा, इसका एंगल और इसका एंगल सेम है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अब पूरे तीनों एंगल का सम किया तो 180 आना चाहिए किसी भी ट्रायंगल का। अगर ये दोनों सेम है तो फिर 180 माइनस दिस 2 का जो भी आएगा, ये और ये एंगल सेम ही आएगा। सो इसलिए ये एंगल ट्रायंगल सिमिलर बन जाते हैं, जिसकी वजह से इनके साइड्स भी प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। सो वो साइड्स यहाँ दिए हैं AR के, मुझे नहीं समझ रहा आपको क्या समझा, बट थ्योरम तो समझ आ गया ना, तो क्यों होता है। सो इट्स बेस्ड ऑन दैट। और ये प्रोपोर्शनैलिटी की वजह से यम इज़ प्रोपोर्शनल टू n, तो इसीलिए यम अपॉन n। सो इट्स अबाउट सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम। वो ज़रा 10th में जाओ, और इट्स ऑल 10th 11th 12th का ही सब कुछ सिलेबस है, बहुत ईजी है, बट उन्होंने बहुत अच्छी तरह से क्यूरेट किया है और क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं घंटों तक एक जगह बैठ के वो सिर्फ सॉल्व करने में, मुझे भूख नहीं लग रही, मुझे प्यास नहीं लग रही, मुझे कुछ भी ध्यान में नहीं आ रहा, मैं बस सॉल्व किए जा रही हूँ। इट्स सो अमेजिंग। apart from this, I think I have covered most of the thing, और रिविजन तो आपका हो जाना चाहिए। लेट मी डू वन मोर थिंग, या one more thing to be covered is distance of parallel lines. Okay, so दो lines parallel है, parallel है, तो कैसे उनका डिस्टेंस कैसे फाइंड किए। पहले तो हम एक पॉइंट का डिस्टेंस एक लाइन से कैसे फाइंड करना है देखते हैं। पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये थोड़ा लंबा पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट स्ट्रेट इज़ मोर, मिनिमम डिस्टेंस है ये इतना, तो इट्स स्ट्रेट है ना। तो ये कैसे फाइंड करना है। अब देखो ये एक नहीं है, ये परपेंडिकुलर है, तो ऐसा मतलब कुछ याद आ रहा है, दो परपेंडिकुलर लाइंस, उनका स्लोप -1 आता है, वो भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसमें। और थोड़ा उस एंगल से सोचो ना तो इजी पड़ता है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल इसी में थोड़ा सा टफ, मुझे भी पहले कुछ समझ नहीं आया, बहुत
थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एंड टीए सेशन अटेंड करने के बाद कुछ थोड़ा सा प्रकाश पड़ा है दिमाग में. सो जो जनरल फॉर्म होता है ना ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो उसमें स्लोप कैसे ढूंढना है. स्लोप इस इक्वेशन में अगर लाइन की इस इक्वेशन दी है किसी लाइन का एंड इज इक्वल टू 0 होना चाहिए. ओके, सो सारी जगह यहाँ पे आके इज इक्वल टू 0 होना चाहिए. सो माइनस ए बाई बी करो तो आपको स्लोप मिलेगा. ओके, सो दैट्स द क्विक thing to know the slope of the line if it is given in a general equation form. So उन्होंने यहाँ पे y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट भी ढूंढा है. उसकी बहुत कुछ ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन क्यू आर, मतलब उसका बेस, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमें पता है वो एक्स वाई 1 2 3 4 वो लेके, और फिर और एक तरीका एरिया ऑफ ट्रायंगल ढूंढने का बेस इनटू हाइट. तो वो भी थोड़ा सा मिक्स करके उन्होंने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो दोनों को इक्वेट करके, मतलब दोनों इक्वली होंगे ना, ऐसे ढूंढो या ऐसे ढूंढो एरिया तो सेम ही होगी. तो वैसे करके वो यहाँ के तो कुछ कंपोनेंट्स यहाँ भेज के, यहाँ के कुछ कंपोनेंट यहाँ भेज के उसकी हाइट ढूंढ रहे हैं पी एम विच इज़ द डिस्टेंस. सो वो कुछ करके एक इक्वेशन बनता है विच इज़ मॉड्यूलस के अंदर ए, जो ए एक्स 1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी. अब ये x और y जो है वो लाइन की इक्वेशन में से, सॉरी x और जो y है ना वो लाइन की इक्वेशन में से नहीं लिए गए, बल्कि उसमें होते ही नहीं है. ऑफ कोर्स उसमें लाइन का इक्वेशन एक अलजेब्रिक फॉर्म में होता है, तो x और y तो उसमें होते ही नहीं. उसमें a होता है, b होता है जो कि कोएफिशिएंट है x और y का, और c होता है जो इंटरसेप्ट है y का. तो x और y जो इस फॉर्मूला में है वो पॉइंट है, वो जो पॉइंट जो हम जिसका डिस्टेंस दूर है उस लाइन से, ये x1 y1, और ये लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी जो इस इक्वेशन में होगी. तो इसमें से a b और c ले लो, ये x और y है. तो उसका कंप्लीट फॉर्मूला होता है मॉड्यूलस के अंदर ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके, सो ये हो गया पॉइंट का डिस्टेंस. अब सोचो ज़रा, वहाँ पॉइंट है मतलब वहाँ पे एक लाइन भी तो जा सकती है, उस पॉइंट से कोई तो लाइन गुजरती होगी, तो वो लाइन उस दूसरी लाइन से पैरेलल होगी. तो उन दो पैरेलल लाइन के बीच में का मतलब, अब मैं एक पॉइंट से डिस्टेंस मेजर कर रही हूँ, मुझे इस लाइन, अब दो पैरेलल लाइन, मैं यहाँ से डिस्टेंस मेजर करूँ, यहाँ से डिस्टेंस, कहीं से भी करूँ क्या फ़र्क पड़ता है. दो पैरेलल लाइन के बीच में का डिस्टेंस क्या है, सेम ही होगा. वो डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा, यहाँ ऐसे चेंज नहीं होगा. इतना जहाँ जितना यहाँ है उतना ही यहाँ भी होगा ना, सेम ही होगा डिस्टेंस. तो वो डिस्टेंस कैसे ढूंढें. तो उसके लिए बहुत इजी है. दो पैरेलल लाइन है मतलब दोनों लाइन की इक्वेशन होंगी. सो उसका फॉर्मूला है मॉड्यूलस के अंदर दोनों लाइन के इंटरसेप्ट मतलब c का डिफरेंस अपॉन रूट में, दोनों लाइन का पैरेलल है तो स्लोप सेम होगा. तो 1 प्लस m स्क्वायर, यम जो है दोनों लाइन का स्लोप है जो कि सेम है. अब यहाँ एक गलती होती है कि कभी कभी लाइन इज़ मल्टीप्लाइड बाय सम स्केलर क्वांटिटी. मतलब ये ले लो 2x प्लस 3y प्लस 6, ये एक
इक्वेशन ऑफ लाइन। दूसरी लाइन है अब इस लाइन को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4x प्लस 6y प्लस 12, है ना। तो यहाँ पे क्या है, c का ना एज इट इज़ नहीं, हाँ सॉरी, c एज इट इज़ लेना है, c एज इट इज़ लेना है। स्लोप करते वक्त हम डिवाइड करेंगे तो c 6 हो जाएगा, बट नहीं, c को 12 ही लेना है, जैसा है वैसा ही लेना है। ये मैंने गलती करी थी ड्यूरिंग सॉल्विंग, सो अब मैं बता रही हूँ, शायद आपने नहीं करोगी, मैं उतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सीख रही हूँ, तो ये याद रखना। चलो, तो बहुत कुछ कवर हो चुका है। आई एम लर्निंग राइट नाउ क्वाड्रेटिक फंक्शन, इट्स अ न्यू स्टेप। बहुत ही मज़ा आ रहा है, मतलब थ्रिल है भाई, थ्रिल, मतलब अमेजिंग है। इट्स अमेजिंग टू। मुझे मैथ्स बहुत पसंद है, तो मुझे तो मज़े आने ही है। एंड और एक टिप दूंगी, जब भी कोई इक्वेशन समझना है ना, तो डेस्मॉस करके गूगल कर लो, एक वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ पे वो इक्वेशन डाल दो, विजुअलाइज कर लो, विजुअलाइज करो उन लाइंस को, उन इक्वेशंस को, उन फंक्शंस को विजुअलाइज करो, क्योंकि वी आर ह्यूमंस और हम डेटा साइंस पढ़ रहे हैं यार। इट्स ऑल अबाउट विजुअलाइजिंग डेटा, मतलब डेटा में जान कैसे फूके कि लोगों को इजीली समझ में आए, है ना। टेक्स्ट से ही सब कुछ नहीं समझ आता, विजुअली वी लर्न अ लॉट मोर। ओके, ये मैं बता रही हूँ जो आपको सिर्फ बता रही है और कुछ नोट्स नहीं दिखा रही, कुछ विजुअल्स नहीं दिखा रही, बट मेरा मकसद यहाँ आपको एंटरटेन करना नहीं है, आपका रिवीजन करना है। कुछ मतलब ऐसे, वी आर डिस्टेंस लर्नर राइट, ऑनलाइन डिग्री कर रहे हैं हम लोग, तो क्लास में होते तो ऐसे ही बात करते, वहाँ पे बुक पे दिखाते, लेकिन मेजॉरिटी हम ऐसे ही बात करते थे। तो इट्स काइंड ऑफ ऑनलाइन कॉन्वर्जेशन विथ यू गाइज, सो जस्ट एन्जॉय, रिवाइज, मेरी कुछ बातें सुनो। अगर कुछ आपको कहना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, बात करेंगे। सो दैट्स ऑल। और आज तो मैंने ये मैथ्स कवर कर लिया। इफ़ पॉसिबल लेट्स सी हाउ हैपन्स, एंड मैं दूसरे भी कवर करूँगी। अब बचा क्या है, स्टैटिस्टिक्स और CT, so both were easy, so I will do it. Okay, bye for this video, see you in the next video for statistics. Okay, bye bye.